رسالے منتری آپ بتائیں تھوڑا سیٹ بھی آپ کو سیٹ کریں ہو رہا ہے صحیح سیٹ کر دیا نموز کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نموز سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نموز کا کیا مطلب ہے؟ اور کوئی بتا دے کوئی بھی بتائے مطلب نموز کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنا مومنین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنی راہ کی تلاش ان کے ذمہ نہیں ڈالی بلکہ ان میں ایک رسول بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما دیتے ہیں ہر انسان اپنی مرضی سے عبادت کرے اپنی مرضی سے جس کا بھی چاہے کہ میں قبول کروں گا. میں اچھائی اور برائی کا پتہ نہ چلتا نہ اچھے راستے کا پتہ چلتا نہ برے راستے کا. تو ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبیوں نے بتایا. آقا جہان تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر بستی میں کیا بھیجا؟ ایک نبی بھیج دیا. بلکہ ان میں اپنا ایک رسول بھیج دیا. اپنی کتاب لا کر سر پہ اس کتاب کی مراد سمجھنے کا بار ان کے دماغوں پر نہیں ڈالا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا گیا. اب کینیا جو قرآن پاک عرب ہے اس کا ترجمہ ہے. اس میں بہت زیادہ کیا ہے مسائل ہیں. اس کا اگر آ جاتا کہ چاند کے بارے میں لکھے چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں نہیں. اس کی تفسیر کس میں؟ قرآن پاک میں ہے. طلاق کے مسائل قرآن پاک میں ہے. بچوں کے حقوق کے مسائل قرآن پاک میں ہے. والدین کی عزت کرنے کے بارے میں کس میں؟ قرآن پاک میں ہے. تو ہمیں پتہ نہ چلتا. تو اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر بھیجا. شاید بے شک بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب کہ بھیج دیا. ان میں پیغمبر ان میں سے جو پڑھتا ہے ان پر ان کی آیات کو ان کو پاک کرتا ہے ان کو سکھاتا ہے کتاب کی عقل کی باتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے ان کے اسراف احترام بن جائے. جب انہوں نے ہمیں ہر چیز بتائی اچھائی اور برائی کے بارے میں بتایا دنیا سے لے کر آخرت تک پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر چیز کے بارے میں بتایا تو ہمیں احترام کس کا کرنا چاہیے؟ آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیے. ان کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. سورۃ الاحزاب احزاب کا کیا مطلب تھا؟ حزب کی جمع ہے جماعت. موسیٰ رسالت کے حوالے سے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منافقین بڑے زبان دراز ہو گئے تھے. اس صورت میں مستعفی کی مذمت کی گئی. مومنوں کو حکم دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ محبت کریں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی روشنی میں ترجمہ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا قبیلہ اور کنبہ اور مال جو تم نے کمایا اور تجارت جس کے مندا ہونے سے تم ڈرتے ہو یعنی اس کے نقصان ہونے سے یا اس کے گھاٹے میں آنے سے جو انسان تجارت کرتا ہے کیا چاہتا ہے انسان کہ ہمیں گھاٹا نہ ہو. جو بھی انسان کاروبار یا بزنس شروع کر رہا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے کیا کماؤں فائدہ حاصل کروں اس کے ذریعے روزی کماؤں اس میں سے مجھے گھاٹا نہ ہو. اب ہوتی ہے کہ نصیب کی بات. ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کام کیا تھا دیکھو کامیاب نہیں ہوا نہیں اس کا نصیب تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. ایک انسان ہے دو بھائی ہوتے ہیں ایک ہی کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن ایک کو ترقی زیادہ ہوتی ہے ایک کو کم ہوتی ہے. دونوں کے کیا ہے نصیبوں میں فرق ہے. یہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے. محنت بھی ہوتی ہے. محنت اب دونوں کی ہوتی ہے. وہ بھی محنت کرتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے. اب دو بھائی ہیں دونوں کی کپڑوں کی دکان ہے وہ بھی محنت کرتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے وہ بھی فیصلہ پا جاتا ہے وہ بھی فیصلہ پا جاتا ہے. مال دونوں کا ایک ہی ہے لیکن کیا ہے قسمت نصیب کی بات ہے نا. کس کی بات ہے؟ بات کرنے کا انداز. ہاں تجارت میں ہے ڈیل کیسے کرتا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے. ڈیل بھی چاہے ہو سکتا ہے جس کا نصیب اچھا ہو اس کی ڈیل زیادہ اچھی ہو. بات ہو رہی ہے نصیب کی. آپ رول نمبر بتا تھا جی لکھ دیا وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے ملتا رہے گا. تجارت جس کے مندا ہو یعنی ہر انسان جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں نقصان نہ سے تم ڈرتے ہو اور گھر جو تم پسند رکھتے ہو گھر ہر انسان کو پسند ہوتا ہے نا.
اور اس ہمارے نزدیک اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاں سے زیادہ پیارے ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے. اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت سے ثابت ہے کہ ہر مسلم کو اللہ اور رسول کی محبت واجب ہے. یعنی ہم کیا کریں, اللہ اور اس کے رسول سے کیا کریں, محبت کریں. اللہ اور رسول سے کیا کریں, محبت کریں. کیونکہ اس سے بتایا کہ تم اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ ہے, اس لیے تم ایمان لائے ہو. بس اگر تم غیر کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہو تو اپنے دعوے میں صادق نہیں ہو. یعنی ہم اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دیں گے, ہم کیا کریں گے, نعرے تو لگا دیں گے غلام ہے رسول کے غلام ہیں, لیکن کیا ہے وہ ہماری محبت اس کی محبت کو ترجیح نہیں دے رہے. ہم اپنے دعوے میں کیا ہے, سچے نہیں ہیں. اگر تم اس طرح محبت غیر سے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے رہو گے تو خدا کے کہنے سے یعنی کہنے سے کیا مراد ہے, عذاب سے ڈرو. ایت کے آخری سے ظاہر ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں وہ کیا ہے, فاسق ہے, وہ گناہ گار ہے. آپ کا رول نمبر 16. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مومن اس وقت نہیں ہوتا جب تک میں اسے اپنے کے نزدیک اس کے باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ان سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو آگے والے نیک لوگ گزر چکے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بے شک آپ سوائے میری جان کی جو میرے دو پہلو میں ہے, ہمارے دو پہلو میں کیا ہے, دل. ظاہر بیٹھا ہوگا نا وہ اور جواب دے گا. وہ آیا نہیں آج. دو پہلو میں ہے, ہمارے دو پہلو میں کیا ہے, دل ہے. میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں بن سکتا. مومن تو سب ہے لیکن کامل جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی, بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے اور جو میرے دونوں پہلو میں ہے زیادہ محبوب ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کی. دوسری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت اور حیبت والا نہ تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کے سبب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرتے تھے, تھوڑا سا ڈر محسوس کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھاگ کر بھی نہ دیتے تھے. ایک جلالت اور حیبت مل جاتے. کیا رول نمبر آپ کا 39. تعظیم و توقیر. تعظیم عزت کو کہتے ہیں, توقیر کہتے ہیں عزت. توقیر بھی کس کو کہتے ہیں, عزت کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. دیکھیں آیت پہ دیکھیں, انا بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, شاہدن گواہ بنا کر, ومبشرا خوشخبری بشارت دینے والا, ونذیرا اور ڈرانے والا, لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ, باللہ اللہ پاک رسول ہی اور اس کے, وتعزروہ اور تم اس کی مدد کرو, وتوقروہ اور تم اس کی توقیر سے عزت کرو, وتسبحوہ تسبیح سے اور تم اس کی سبحان اللہ سے تم اس کی پاکی بیان کرو, بکرۃ صبح کے وقت اور شام کے وقت. ترجمہ آ گیا نا, پیچھے سے پڑھا ہے نا. اس طرح آیت پہ دیکھیں گے تو آپ کو لازم والا اس کے آگے ترجمہ بھی آتا جائے گا, کیونکہ الفاظ قرآن پاک کے ایک ہی ہوتے ہیں, وہ سیکھے کا فرق ہوتا ہے اس سے. اب پیچھے سے دیکھیں, آپ پیچھے انا ارسلناک کا پڑھا تھا نا, انا ارسلناک رحمۃ للعالمین. یہاں پر بھی انا ارسلناک بے شک بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن گواہ بنا کر, مبشرا خوشخبری دینے والا, ونذیرا اور ڈرانے والا, تاکہ تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور تم عزت کرو اس کی اور تم توقیر کرو اس کی, مدد کرو اس کی اور توقیر کرو یعنی عزت کرو اس کی, اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی واجب ہونے کی تعلیم دی ہے. اے ایمان والا اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اس سے ڈرو. اللہ تحقیق اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایمان والا تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بھی اونچی نہ کرو, جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کہتے ہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو.
पहले क्या करते थे, पहले ज़माने में जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते तो देहाती बैठ से मिलने आते तो बाहर दरवाजे पर क्या देते थे, दस्तक देते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरा जाए, आप बहरा, ज़ोर ज़ोर से कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से भी ऊंची ना करो, और तुम्हें जब आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठो खामोशी से रहो, अपनी आवाज़ आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे अमाल क्या हो जाए, ज़ाया हो जाए। दोबारा से क्या मतलब है, ऐसे ना हो कि हमारे अमाल ज़ाया हो जाए और हमें खबर भी ना हो। तो उस वक्त उनको तंबीह की थी, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं बुलाना, आपके दरवाजे पर जब जाना है तो आराम से बुलाना और 3 बार दस्तक देने। अगर आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ तशरीफ ले आए ठीक, वरना उन्हें वापस चले जाना है। तर्जुमा देखते हैं रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़साइस सहाबा कराम की खुसूसियात। सूरत बक़रा आयत नंबर 29। रोल नंबर पता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, माअहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ, ज़्यादा सख्त है ऊपर कुफार के, रहमाहू, और रहम दिल हैं आपस में, तराहम, आप देखेंगे उनको, रुकान, रुकू करते हुए, सुजदन, और सजदा करते हुए। जब तबूना, वो तलाश करते हैं, फजल मिनल्लाह, फजल को मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रिज़वानन, और रज़ामंदी को। सीमाम, उनकी अलामत उनके चेहरों में है, मिन असर सजूद, सजदों के असर से। उनकी मिसाल ज़ालिका, उनकी मसल, हम मिसाल उनकी, ये मिसाल उनकी फिर तौरात में है, और मिसाल उनकी इंजील में है। कज़ारिन, जैसे खेती है, अखरजान, उसने निकाला, शतअहू, अपनी सुई को या अपनी जड़ को, फाज़रहू, फिर उसको कभी काट दिया, फस्तगलज़ा, फिर वो मोटी होगी, फस्तवा, फिर वो खड़ी होगी। फस्तगलज़ा, फिर वो मोटी होगी, फस्तवा, फिर खड़ी होगी, अला सौक़ी, सौक़ किसको कहते हैं? वैसे आम बात किसको, गम, सोग मैंने नहीं कहा, सोग का है। सोग जिस्म के हिस्सों में से अरबी का लफ्ज़ है, इसको पिंडली को कहते हैं। क्या मैं? पिंडली, पिंडली को कहते हैं। पिंडली क्या होती है? पिंडली सत्ता है पिंडली। ऊपर अपनी जड़ के, जो जब वो अच्छी लगती है किसान को ऐसा, ताकि गुस्से हों साथ उनके कुफार। वादा किया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए, उन अमल के नेक, में उनमें से मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। रोल नंबर बताएं आप। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और वो लोग जो उनके साथ थे, वो ज़्यादा सख्त है ऊपर कुफार के, रहम दिल है आपस में। आप देखेंगे उनको रुकू करते हुए, सुजदन, सजदा करते हुए, यब्तगूना, वो तलाश करते हैं, फजल को अल्लाह की तरफ से, और रज़ामंदी को। उनकी अलामत उनके चेहरों में है, सजदों के असर से। उनकी ये मिसाल है उनकी तौरात में, और मिसाल उनकी इंजील में है। जैसा कि खेती है, निकाली उसने अपनी सुई को, पस कभी काट दिया उसको, पस मोटी हुई, पस दबा, फिर खड़ी होगी, ऊपर अपनी पिंडली के या ऊपर अपनी जड़ के। मोच रहे हैं अच्छी लगती है किसान को, ताकि गुस्सा हो साथ उनके कुफार। वादा कि अल्लाह ताला ने उन लोगों से जो ईमान लाए, उन्हें अमल किए नेक, और उनमें से मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। ऐसे तर्जुमा नीचे देखें आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस में रहम दिल है। तो उन्हें देखेगा, रुकू करते, सजदा रहे सोते, वो तलाश करते हैं अल्लाह का फजल उसकी रज़ामंदी से। उनकी अलामत उनके चेहरों में सजदों के असर हैं। ये उनकी सिफत तौरात में मज़कूर है, और ये उनकी सिफत इंजील में है। जैसे खेती है, उसने अपनी सुई निकाली,
फिर उससे कभी किया, फिर मोटी हुई, फिर अपनी नाल पर खड़ी होगी, हुई पिंडली पर खड़ी होगी। वो किसानों को अच्छी लगती है ताकि उन काफरों को गुस्सा में लाएं। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान ले और उन्होंने अच्छे अमल किए, मग़फ़िरत है उनके लिए बड़ा। अब तशरीह देखे, आयत के साथ साथ तशरीह देखते जाएं। पहले देखे मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तशरीह देखे। मोहम्मद और रसूलुल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनका इसम गुरामी क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम गुरामी क्या है? मोहम्मद और अहमद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। इस तरह नहीं है जैसे मुशरिक कहते थे। मुशरिक क्या कहते थे आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पीछे पढ़ा है मैंने भी बताए हैं। साहिर कहते थे, कज़ाब कहते थे। हाँ तो साहिर का क्या मतलब है? जादूगर कहते थे, कज़ाब झूठे कहते थे, दीवाना कहते थे, मजनू कहते थे। तो देखिए आप पूरे कुरान में ख़त्मुल अंबिया का नाम लेने के बजाय उम्मन आपका जिक्र उसाफ और काफ के साथ किया गया है। यानी पूरे कुरान पाक में ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल नबी, इस तरह क्या किया गया? इन अल्फाज से क्या किया गया? मुखातब किया गया है। खुसूसन निदा के मौके पर। निदा किसे कहते हैं? हाँ निदा, इसी का निदा भी होता है ना। हाँ वही निदा, और बलाते निदा वैसे निदा और बला उर्दू में पढ़ते भी हैं। पुकारना पहली बार सुना नहीं, उर्दू में अब मैंने फाइल में पढ़ाया है हर्फ निदा। वो 7 साल हो गए मैम। हर्फ निदा या जिस तरह सराकी में ओए कहते नहीं है ना, दूर कोई ठहरा ना, ओए इधर बुलाते ना, ये हर्फ निदा होते हैं, पुकारने के लिए। ठीक है, किधर लिखा हुआ है ये? निदा के मौके पर अय्युहन नबियो, या अय्युहन नबियो, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल वगैरह बखिलाफ दूसरे अंबिया कराम उनके नाम के साथ हैं। जैसे या इब्राहीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या मूसा, या ईसा, या यूसुफ। पूरे कुरान में सिर्फ 4 जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद आया है। कितनी जगह पर? 4 जगह पर आया है। एक यहाँ पे है, एक 28 पारे में है, एक 4 पारा नंबर 4 में है, तो क्या याद नहीं है। पूरे कुरान में सिर्फ 4 जगह आपका नाम हम जब आए जंग औद में, पतन जंग बदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमदान मुबारक शहीद हुए थे, वहाँ पर है 4 में। और मैंने कहा पे है 28 में, यहाँ पे है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सूरत वो यहाँ 4 पारा में है ना, अल इमरान पारा नंबर 4 में है। सबसे ज्यादा किसका नाम आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। काउंटिंग मुझे याद नहीं है, सबसे ज़्यादा क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो उनका लक़ब क्या है? कलीमुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का कलाम। रसूल अल्लाह किधर चले गया? जहाँ इस्लाम की ज़िक्र कोई मसला थी, यानी अगर मोहम्मद अल्लाह ताला ने लिखा तो इसमें क्या थी? कोई ना कोई मसलियत थी। मसलियत ज़िक्र नाम। अब इसकी मसलियत क्या थी? इसकी वजह क्या थी? इस मकाम पर मसलियत ये थी कि हुदैबिया के सुलहनामा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँच रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो कुफार कुरैश ने इसको मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। वो क्या करते थे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते थे, तो उन्होंने क्या लिख लिया? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बिन का क्या मतलब है? बेटा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेटे हैं किसके? अब्दुल्ला पे। लिखने पर इसरार किया। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहु मेहरबानी इसको मंजूर कर लेना कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप कबूल कर ले। अब ये जो कह रहे हैं आप क्या लिखें? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो नंबर बताया नाम 21 लिखने पर इसरार किया। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहरबानी इसको मंजूर कर लेना कबूल किया। हक ताला ने इस मुकाम पर खुसूसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ फरमाया। तो इसमें भी सुलह हुदैबिया के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कि आका दो जब ये नाम मिटाएगा तो आपको थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये किसकी मोहर है? रसूलुल्लाह क्या है? हमारे खत्म नबुव्वत की मोहर है ना। उन्होंने मोहर को क्या कर दिया? मिटा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा गमज़दा हुए तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया।
रसूल अल्लाह का लफ्ज़ लिखकर कुरान में लिखकर इसको दायमी बना दिया। दायम का क्या मतलब है? हमेशगी वाला बना दिया, जो क़यामत तक इस तरह पढ़ा और लिखा जाएगा। सुभान वल्लज़ीना माअहू की देखें, वल्लज़ीना और वो लोग जो उनके साथ हैं। यहाँ से आप के सहाबा कराम का फिजाल का बयान है। अगर दो जन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन रहते थे हर वक्त? सहाबा कराम। लेकिन इसके पहले मुखातिब वो हजरत साहब है जो हुदैबिया और बैत रिज़वान में शरीक थे, लेकिन अल्फाज के अमूम में सभी सहाबा कराम शामिल हैं। पहले उनको तरजीह दी जाएगी जो क्या ना हुदैबिया में थे और बैत रिज़वान में थे, लेकिन अल्फाज के अमूम के लिहाज से सब सहाबा कराम शामिल है, क्योंकि सोबत और मैयत सब को हासिल, क्योंकि सब भी नबी वसल्लम की सोबत में रहे हैं। सहाबा कराम के औसाफ व फ़ज़ाइल और ख़ास अलामात। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इनाम की रिसालत आप सबके दीन को सब तीनों पर गालिब करने का ऐलान फरमाया कि सहाबा कराम के औसाफ फ़ज़ाइल और ख़ास अलामात का जिक्र तफसील से किया है। इनमें से एक सख्त इम्तिहान का इनाम भी है जो सुलह हुदैबिया के वक्त लिया गया था। उनके कल्बी यकीन और कल्बी जज्बात के खिलाफ मसला होकर बगैर दखूल मक्का वगैरह नाकाम वापसी के बावजूद उनके कदम मुतज़लज़ल ना हो गए। सुलह हुदैबिया में क्या था? सुलह हुदैबिया में कि शराइत क्या थी? कि तलवारें लेकर ना आए। हाँ, मुसलमान के उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। इसी तरह क्या थी? 5-6 क्या थी? शराइत थी जो ज़्यादा थी। क्या थी? काफिरों के हक में थी, हमारे हक में नहीं ना थी। फिर भी उन्होंने क्या कर दी थी? तोड़ दी थी। दुखूल मक्का आप उम्रा करने की इरादे से जब गए थे, बहुत से 14 सहाबा कराम आप जो जहां से जब गए तो उन्होंने क्या कर दिया? आप उम्रा करने से रोक दिया। आप इस साल उम्रा ना करें बल्कि अगले साल है। तो इनके बावजूद उनके कदम मुतज़लज़ल, उन्हें कुछ भी ना हुआ। उन बेनज़ीर बेशुमार अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत ईमानी का सबूत है। सहाबा कराम के फ़ज़ाइल, यानी इस वक्त भी सहाबा कराम किसके साथ रहे? आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अलमात की तफसील बयान फरमाने में ये हिकमत भी हो तो बैद नहीं कि यहाँ जिस बात कोई नबी और कोई रसूल को मबूस होने वाला नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उम्मत के लिए किताबुल्लाह के साथ अपने सहाबा को बतौर नमूना के छोड़ा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन था? ज़्यादा दर्जा किसका है? इंसानों में से सहाबा कराम का आया था। तो सहाबा कराम ने उस वक्त भी यानी इतनी मुश्किलात में भी के बावजूद भी आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? तो उम्रा करने का इरादा किया हुआ था और उन्होंने क्या एहराम भी बांध दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहता उम्रा करने से मना कर दिया। आप इस साल उम्रा ना करें बल्कि अगले साल करें। उनकी इक़्तिदा और किनकी पैरवी की? अगर जो जहां से वसल्लम की पैरवी की, उनके इक़्तिदा इत्तिबा के काम दिए हैं। यानी आपने कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन साहब कुछ साहब का तैश में नहीं हम उम्रा करने जाएंगे, लेकिन अगर जो जहां से वसल्लम ने साबित कदमी से काम लिया नहीं, जब वो कह रहे हैं हमें उम्रा नहीं करना, तो उन्होंने किसकी पैरवी की? आका दो जहान से वसल्लम की पैरवी की। इसलिए कुरान ने भी उनके कुछ फ़ज़ाइल अलमात का बयान फरमाकर मुसलमानों को उनकी इत्तिबा की तरकीब व तकीद फरमा दिया है। सहाबा कराम का पहला वास्फ माने खूबी। इस मकाम पर सहाबा कराम का सबसे पहला वास्फ ये बतलाया गया कि वो कुफार के मुकाबले में सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। यानी जो मुसलमान है वो कुफार से क्या करते हैं? सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आपस में क्या है? वो रहमदिल है। कुफार के मुकाबले में सख्त होना उनका हर मौके पर साबित होता रहा कि निस्बी रिश्ते नाते सब इस्लाम पर कुर्बान कर दिए। हुदैबिया के मौके पर खुसूसियत से इसका इज़हार हुआ। आपस में तो मेहरबान है, लेकिन क्या है? कुफार से क्या करते हैं? थोड़ी सी सख्ती से पेश आते हैं। आपस में मेहरबान होना और इसार पेश होना। सहाबा कराम का इसार उस वक्त खुसूसियत से ज़ाहिर हुआ जब मुहाजिरीन इंसार में मवाक़ात क्या थी। जब इंसार और मुहाजिरीन को क्या कहते हैं? मवाक़ात के बाद क्या होता है? जब मुहाजिरीन ने क्या की थी? हिजरत की थी, तो उस वक्त क्या हुआ था? रोल नंबर बताएं अपना। रोल नंबर बताएं। 20। उन्होंने इसार से काम लिया जिनकी जब मुहाजिर किसे कहते हैं? हिजरत करने वाले को। ये भी जो हमारे यहाँ मुहाजिर है ये भी हिजरत करके आए हैं ना। तो हाँ, जो मुहाजिर है ना, हम तो लोकल, हम तो यहीं के रहने वाले हैं ना, अफगानिस्तान से। हाँ, वो हिजरत करके आए थे। तो मुहाजिर लोगों ने क्या, मुहाजिर लोग जब आए तो उन्होंने क्या किया? सहाबा कराम ने साहब ने क्या किया? अपना आधा सामान किसको दे दिया? अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। में से वो कहते हैं बाज़ रिवायत में आता है जिसकी 2 बीवी थी उसने उसे एक को तलाक देकर एक अपने भाई को दे दी।
सहाबा करम के साथ इस वक्त उससे ज़ाहिर हुआ कि जब मुहाजिर इंसान में मुलाकात हुई, इंसान ने सब चीज़ों में से शरीक होने की दावत दी। कुरान करीम ने सहाबा करम की इस बात को मुकद्दम बयान फरमाया, यानी जहाँ भी किसी कुर्बानी का जिक्र आता है तो सबसे पहले कौन सी मुलाकात का जिक्र आता है, अंसार और मुहाजिरीन का, क्योंकि इनकी दोस्ती और दुश्मनी मोहब्बत और दावत अपने नफ्स के लिए नहीं थी, बल्कि किसके लिए थी? इस्लाम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए थी। सब अल्लाह ताला उसके रसूल के लिए होते हैं। सही बुखारी वगैरह में मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह, यानी जिस शख्स ने अपनी मोहब्बत और बुग़्ज़ दावत दोनों को क्या किया? अल्लाह ताला के लिए रखा। फ़क़द इस्तकमल ईमान, बस बेशक उसने क्या कर लिया? अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। इससे ये भी साबित हो गया कि सहाबा किराम के कुफार के मुकाबले पर सख्त होने का मतलब ये नहीं, वो कभी किसी काफिर पर रहम नहीं करते, बल्कि मतलब ये है जिस मौका पर अल्लाह और रसूल का हुक्म सख्ती का हुक्म देते हैं तो वहाँ पर उनको उनके रिश्ते नाते या दोस्ती वगैरह के तल्लुकात इस्लाम में माने नहीं। अब जंग में आए, बाज़ रिवायत में पढ़ा किसी बाप ने बेटे को वो कर दिया जो इस्लाम ले आया था, तो उस वक्त वो रिश्ता नाता नहीं करना, जब कोई चीज़ मांगने आ जाए उस वक्त तो चलो दे देते थे, जब जिस वक्त रिश्ते नाते का ख्याल नहीं ना करने का हुक्म आया जिस तरह जंग में, तो उस वक्त क्या करते थे? रिश्ते नाते को नहीं देखते थे, और जहाँ तक उनके साथ रहम व करम करने से मामला का ताल्लुक है वो तो कुरान ने फैसला कर दिया है। दूसरा वास्फ क्या था? दूसरी को भी दी, वो रुकू करते हैं और सजदे में मशगूल रहते हैं, उनको देखने वाले अक्सर इसी काम में मशगूल पाते। पहला वास्फ माल ईमान की अलामत है, दूसरा वास्फ माल अमल बयान किया, क्योंकि अमाल में सबसे अफजल कौन है? क्या चीज़ है? नमाज है। सीमा हम उनकी अलामत उनके चेहरे से सुजुदों के असर से है, यानी नमाज उनका ऐसा वजीफा जिंदगी बन गया है। नमाज और सजदे में मखसूस असर उनके चेहरों से नुमाया होते हैं। मुराद इन असर से वो अनवार हैं जो अब्दियत और खुशू खुशू से हर बुत की इबादत गुजार के चेहरे पर मुशाहिदा किए जाते हैं। जो इंसान नमाज पढ़ने वाला होता है वो उसके चेहरे पर खुद ब खुद अल्लाह ताला कह देते हैं, नूर दे देते हैं ना। जो नमाज पढ़ने वाला ना हो उसके चेहरे पे इतना नूर नहीं होगा। नमाज और सज्जा के मखसूस असर उनके चेहरों से नुमाया होते हैं। मुराद इन असर से वो अनवार है जो अब्दियत और खुशू खुशू से हर बुत की इबादत गुजार के चेहरे पर मुशाहिदा किए जाते हैं। निशानी में जो निशान सज्जा का पड़ जाते हैं वो मुराद नहीं, दूसरा नमाज तहज्जुद का असर बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है। अब बाज़ वक्त नमाज पढ़ते तो यहाँ पर क्या हो जाता है? निशान पड़ जाता है, इससे ये मुराद नहीं है। जैसे कि अपने माजा में है तर्जुमा, यानी जो शख्स रात में नमाज कसरत करता है उसका चेहरा हसीन पुरनूर नजर आता है, यानी जो इंसान रात को उठ कर इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, उसका चेहरा क्या नजर आता है? पुरनूर हसीन नजर आता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह का कौल के इससे मुराद नमाज़ों के चेहरों का वो नूर है जो क़यामत में नुमाया होगा। वो कहते हैं एक यानी उनकी रिवायत और वो कहते हैं कि इससे मुराद दुनिया का नूर नहीं है, बल्कि कौन सा नूर है? जो क़यामत वाले मोमिनीन के चेहरों पर होगा। अब देखिए ज़ाला का मसला फिर तुरात से देखें। इस आयत में फरमाया कि इनकी ये मिसाल तुरात में बयान की गई, फिर फरमाया कि इंजील में इसकी और ये मिसाल दी गई कि वो ऐसे हैं जैसे कोई काश्तकार ज़मीन से बीज उगाते तो अव्वल वो एक ज़ईफ़ सी सुई की शक्ल में नमूदार होता है। जब इंसान बीज उगाता है तो पहले ज़ाहिर एकदम बड़ा बड़ा पौधा तो नहीं बन जाता, पहले छोटा छोटा सुई नुमा होता है, सुई की शक्ल में होता है, फिर उसकी शाखें निकलती हैं, फिर वो कवि होता है, फिर उसका मजबूत करना बन जाता है। इसी तरह नबी के सहाबा करम शुरू में क्या थे? अब इसकी मिसाल किससे दी है? सहाबा करम से दी है, हंसे मत। इस तरह नबी के सहाबा करम शुरू में बहुत कम थे। एक वक्त ऐसा था कि के सिवा सिर्फ 3 मुसलमान थे, मर्दों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, औरतों में हज़रत खदीजा और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। फिर रफ्ता रफ्ता इनकी कुव्वत बढ़ती रही, यहाँ तक रुजूतुल विदा के मौके पर आकर दो जहां हज में शरीक होने वाले 1.5 लाख के करीब बताई गई है। इस आयत में 3 एहतमाल में से एक है कि तुरात पर वक्त किया जाए, और पिछली मिसाल यानी चेहरों का नूर की अलामत तुरात के हवाले से बयान की गई। मसलन फिर इंजील पर वक्त ना करे बल्कि मिलाकर पढ़े तो मायने होंगे कि साहबा की मिसाल इंजील में इस खेती या दरात के जो शुरू में नहायत कमज़ोर होता है, फिर रफ्ता रफ्ता किसको क्या जाता है? मजबूत बन जाता है। जो हक पर होंगे अल्लाह ताला भी किस उनको मजबूत बनाएंगे, जो हक होंगे उनको मजबूत नहीं बनाएंगे। ताकत भी उनके पास होगी, हर चीज़ क्या होगी? उनके पास होगी। कुफारा यानी अल्लाह ताला ने सहाबा करम को सिफात कमाल के साथ मुज़य्यन फरमाया कि इनको ज़ाफ़ के बाद कुव्वत, किल्लत के बाद कसरत बख्शी। सब काम उससे लिए होगा कि इनको देखकर काफिरों को गैज़ हो और वो हसद की आग में जलें। वो होता है गैज़ से मुराद वो गुस्से हों और वो हसद की आग में क्या करें? जल जाए। काफिर लोग तो ये कहते हैं मुसलमानों की तादाद ज़्यादा ना हो बल्कि क्या हो? कम हो। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को क्या दिया? ऐसे तरक्की दी ताकि काफिर क्या हो? वो हसद की आग में चलते रहें।
حضرت ابو عروہ ظاہری کا قول آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر تھے. ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقید کے کچھ کلمات کہے تو امام مالک نے یہ آیت پوری تلاوت فرمائی لی. غیظ اب ہم کفارہ پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کے ساتھ کسی غیظ ہو تو اس آیت کو وعید ملے، اس کی آیت کی وعید ملے گی، یعنی اس کو کیا ملے گی؟ سخت سزا ملے گی. صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کرنی، ان کے کیا حالات تھے، کس وقت نا اتفاقی تھی یا تھوڑا سا جھگڑا تھا، ہمیں ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، ہمیں ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہ سارا آ رہا ہے اس کے بارے میں. میں نے کہا اپنی نسبت فضل ایمان یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا یہاں سے دیکھیں جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کے کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر فرمایا ہے. اس سے یہ ایک تو یہ معلومات ہے صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہے. دوسرا یہ کہ ان میں سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. آگے ساری وہ آ رہی ہے گرامر آ رہی ہے، یہ آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، میں ایسے پڑھا دے جو آپ دیکھ کے سمجھ آتی ہے. کافی ہے گرامر پوری پڑھیں گے نا پھر یہ چیز سمجھ آئے گی. اچھا بند کریں اس کو، یا میں ایسے پڑھا بند کر دو.